عید الفطر کی خوشیاں، روایت اور جوش و خروش برقرار ہے۔ میٹھی عید کا دوسرا روز ہے اور میل ملاقاتیں، دعوتیں، موج مستی اور سیر و تفریح کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ مختلف شہروں میں کئی فیملیز نے مختلف فوڈ پوائنٹس کا رخ کیا ہے اور مزیدار کھابوں کے ساتھ ساتھ خوش گپیاں بھی جاری ہیں۔ مل جل کر عید کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں اور ہمارے نمائندگان بھی پورے ملک میں مختلف فوڈ پوائنٹس پر موجود ہیں۔ جی ہاں، اور رپورٹ کرنے پہنچے ہیں کہ شہری اس وقت کیسے عید منا رہے ہیں اور بچے کیا ہلا گلا کر رہے ہیں۔ مختلف فوڈ پوائنٹس پر موجود ہیں ہمارے نمائندگار، ان کی جانب چلتے ہیں۔ کراچی سے ہمیں جوائن کریں گے عدنان راجپوت اور جو کہ بنس روڈ پر موجود ہیں۔ پشاور سے ہمارا ساتھ دیں گے عدنان طارق جو کہ یونیورسٹی روڈ پر موجود ہیں۔ لاہور کے لکشمی چوک پر عابد خان موجود ہیں، جبکہ اسلام آباد میں زینب علی شکر پڑیاں بھی موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم رخ کر لیتے ہیں کراچی چلے جاتے ہیں۔ عدنان راجپوت وہاں پر موجود ہیں۔ عدنان بتائیے کس فوڈ پوائنٹ پر موجود ہیں اور شہری کیا کھا کر عید کے سیکنڈ ڈے کو انجوائے کر رہے ہیں؟ ہاں جی بالکل، دن بھر سیر و تفریح کے بعد اب بات ہو جائے مزے کے پکوانوں کی تو شہریوں نے اب رخ کر لیا ہے شہر کے مختلف فوڈ اسٹریٹ کا۔ ہم اس وقت موجود ہیں کراچی شہر کی سب سے قدیمی فوڈ اسٹریٹ بنس روڈ پر۔ یہاں کی بات کی جائے تو یہاں پر بھی شہری اپنی فیملیز اور دوستوں کے ہمراہ اس فوڈ اسٹریٹ پر پہنچ رہے ہیں اور اپنے من پسند کھانے کھاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس فوڈ اسٹریٹ کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر ہر طرح کے پکوان دستیاب ہیں۔ یہاں پر شہری کوئی مٹن کڑھائی کھا رہا ہے تو کوئی مسالے دار بریانی تو کوئی بنس روڈ کی مزیدار اور مشہور نہاری کھاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر مل جائے میٹھے میں ٹھنڈی ربڑی تو اس عید کا مزہ ہی اور دوبالا ہو جاتا ہے۔ شہری جو ہے بھرپور انداز سے عید کے دوسرے روز کو انجوائے کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، جبکہ کافی گہما گہمی کا عالم ہے۔ یہاں پر کافی بھیڑ ہے لوگوں کی، لوگ اپنی فیملیز اور دوستوں کے ہمراہ یہاں پہنچ کر اپنے من پسند کھانوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، اب رخ کر لیتے ہیں اسلام آباد کا۔ زینب علی شکر پڑیاں میں موجود ہے۔ زینب، یہاں پر کیا کھانا پسند کیا جا رہا ہے شکر پڑیاں میں؟ جی، کراچی کی طرح اسلام آباد میں بھی عید کا دوسرا دن جو ہے بھرپور طریقے سے منایا جا رہا ہے۔ اس وقت میں اسلام آباد کے ایک مشہور نجے ریسٹورینٹ میں موجود ہوں، جہاں پر لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے یہاں پر اپنی فیملیز کے ساتھ آئی ہوئی ہیں۔ بچے بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں اور یہاں پر مزے کے پکوان جو ہیں وہ کھائے جا رہے ہیں، خوش گپیاں لگائی جا رہی ہیں۔ ہر وہ چیز جس کا نام لیتے منہ میں پانی آ جائے، سیخ کباب، پلاؤ اور خاص طور پر یہاں کی جو اسپیشل چیز ہے دم پوخ، وہ کھانے کے لیے دور دور سے لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں۔ خاص کر خیبر پختونخوا سے یہاں پہ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد آئی ہوئی ہے جو یہاں پہ دم پوخ کھانے آئے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ خواتین بھی یہاں پر آئی ہوئی ہیں، اپنی فیملیز کے ساتھ آئی ہوئی ہیں۔ خواتین کا کہنا ہے کہ عید کا پہلا دن روایتی طور پہ جس طرح گھروں میں منایا جاتا ہے، لوگ ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں، بچوں کی عیدی دی جاتی ہے اور خواتین جو ہے سارا دن کھانا بنانے میں مصروف رہتی ہیں۔ ان کا بھی کہنا ہے کہ عید کے دوسرے دن وہ باہر جاتی ہیں اور دن کو انجوائے کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ایک ایسا دن ہوتا ہے کہ پورا سال انتظار کرتے ہیں، اپنی مصروف زندگی میں سے وقت نکالتے ہیں اور اپنے پیاروں سے ملتے ہیں اور ان کو انتظار ہوتا ہے کہ یہ دن دوبارہ آئے تاکہ وہ اپنے پیاروں سے مل سکے اور ان کے ساتھ وقت گزار سکے۔ جی ٹھیک ہے زینب، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پشاور کا رخ کرتے ہیں۔ عدنان طارق وہاں پر موجود ہے۔ عدنان بتائیے کس جگہ پر موجود ہیں اور کیا کھایا جا رہا ہے، شہری کس چیز کو انجوائے کر رہے ہیں؟ جی بالکل، پشاور کے شہری چھوٹی عید کو بڑی خوشیوں کے ساتھ روایتی پکوان کھا کے خوب انجوائے کر رہے ہیں۔ میں اس وقت پشاور کے مشہور قابلی پلاؤ ہوٹل میں موجود ہوں۔ پشاور کے قابلی پلاؤ نہ صرف پشاور میں بلکہ پورے پاکستان سے، خیبر سے لے کے کراچی تک مشہور ہے، بلکہ تاجکستان، افغانستان اور قبائلی علاقائی جات میں جو ہے بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ گوشت کی یخنی میں تیار ہونے والا قابلی پلاؤ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زبردست ہے، اس کا ذائقہ بہت زبردست ہے اور اس میں کوئی مرچ مسالے نہیں ہے، سادہ پلاؤ ہے اور اس میں گوشت والے پلاؤ ہے، کشمش اس میں جو ہے وہ ڈالی جاتی ہے اور زیادہ رش جو ہے اس میں جو ہے وہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ ہر عمر کے افراد، بچے، بڑے، بزرگ سب اسی کو جو ہے شوق سے کھاتے ہیں۔ قابلی پلاؤ میں سب ایک خوراک جو ہے تقریباً 1500 روپے کی ملتی ہے اور پشاور میں جتنے لوگ دوسرے اضلاع سے عید منانے آتے ہیں وہ پشاور کے قابلی پلاؤ کھائے بغیر جو ہے یہاں سے واپس نہیں جاتے۔ عید جو ہے وہ خوب انجوائے کر رہے، کوئی مٹن ٹکا کڑھائی کھا رہا ہے، کہیں پر دمبے جو ہے ان کے باربیکیو محفلیں جا رہی ہیں، تو کہیں پر جو ہے وہ چپلی کباب جو ہے پسند کیے جا رہے ہیں۔ پشاور میں تو قابلی پلاؤ کھایا جا رہا ہے۔ عدنان ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ لاہور کا رخ کر لیتے ہیں۔ لاہوریے تو کھانے پینے کے کافی شوقین ہیں۔ عابد، یہاں پر کیا کھانا پسند کیا جا رہا ہے؟ لکشمی چوک پہ آپ موجود ہیں۔ جس طرح لاہوریوں کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ لاہوریے جو ہے وہ کھابے سجانے کے لیے موقع کا انتظار کرتے ہیں اور کوئی موقع ہاتھ سے
जाने नहीं देता। तो ईद का जब आज दूसरा दिन है तो ये किस तरह हो सकता है कि कोई लाहौरिया घर में बैठे और बाहर जाकर मज़ेदार खाने ना खाए। इस वक्त मैं लक्ष्मी चौक में मौजूद हूँ, जिसे कि फूड लवर्स का जो है वो पैराडाइज कहा जाता है। यहाँ मुख्तलिफ जितनी भी हमारी देसी डिशेज हैं वो पूरे लक्ष्मी चौक में पकाई जाती है। मगर इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ ये शीफा कीमा कढ़ाई के नाम से मशहूर है और पूरे लाहौर क्या पूरे पाकिस्तान में जो है ये कढ़ाई मशहूर है और लोग बाहर से भी आकर जो है वो ये कढ़ाई खाते हैं। यहाँ पर टक लोग बड़े शौक से आकर खाते हैं। इसके अलावा कीमा कढ़ाई है, इसके अलावा जो है वो मटन कढ़ाई और दीगर जो देसी डिशेज हैं वो लोग पसंद करते हैं। हमें आज आके लक्ष्मी चौक में यूँ लग रहा था कि जैसे शायद ही लाहौर का कोई बंदा होगा जो अपने घर में आज बैठा होगा। यूँ लगता था कि पूरा लाहौर जो है वो यहाँ उमड़ आया और उन लोगों को यहाँ इतना हंसता खेलता देख के हमारा दिल पर है कि पाकिस्तान में आज खुशियाँ जो है वो बिखरी हुई है। मगर इसके साथ साथ इस बीपर के दौरान भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है जब मैं देख लूँ कि लोग इतने मज़ेदार जो है वो डिशेज से इंजॉय कर रहे हैं। बहरहाल जी हमें इंशाल्लाह ये ख़त्म करने के बाद अपना बीपर हम भी शायद इन खानों पे टूट पड़ेंगे। लेकिन बहरहाल आज ईद के दूसरे दिन लाहौरियों ने एक बार फिर अपनी उसी रवायती जिंदा दिली का सबूत दिया है और धड़ाधड़ लोग जो है आप सबको करते हैं। आप लोग खाना एंजॉय करें। मुख्तलिफ शहरों में किस तरह से ईद का दूसरा दिन मनाया जा रहा है हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट करे थे। कराची से हमारे साथ थे अदनान राजपूत, पेशावर से अदनान तारिक, लाहौर से आबिद खान और इस्लामाबाद से ज़ैनब अली हमें अपडेट करी थी। बहुत शुक्रिया आप सबका। तो मीठी ईद के दूसरे रोज बच्चों का हल्ला गुल्ला मौज मस्ती जारी रही। बच्चों ने दूसरे रोज भी खूब ईदी वसूल की, खाना खाया और फिर कोई नानी के घर गया तो कोई ईदी उड़ाने पार्क, फनलैंड या मेले में पहुंच गया। ईद के दूसरे दिन भी खुशियों का जश्न, बच्चों के लिए जारी रहा ईदी जमा करने का मिशन। किसी ने दावतें उड़ाई, खाबे खाए तो कुछ छुट्टी का फायदा उठाने तफरी करने निकल पड़े। गुजरावाला के गुलशन इकबाल पार्क में बच्चे ईदी खर्च करने पहुँचे, झूलों पर रश लगाया, अपने साथ अम्मी अब्बू को भी घुमाया। हमने पहले आइसक्रीम और गोलगप्पे खाया, अब हम झूले लेने जा रहे हैं। पेशावर में हमारे नुमाइंदे नवाब शहर प्ले लैंड पहुँचे तो बच्चों के साथ खुद भी बच्चे बन गए। कराची के तफरीही मकामात पर सुबह से रौनक लगी रही। पर्दा पार्क में तो बच्चों ने खूब एंजॉय किया। कोयटा के मशहूर अस्करी पार्क में बड़े और बच्चे खूब घूमे। सक्कर के लबे मेहरान पार्क में भी सुबह से रश लगा है। ठट्टा की तारीखी शाहजहां मस्जिद के पार्क में बच्चों की मौज मस्ती रही। मकली कब्रिस्तान और केंजर झील पर भी लोग बड़ी तादाद में जमा हुए। शहर इक़्तिदार में भी लोग तफरी करने निकले, लेकिन ज्यादातर सड़कों पर ख्वार हो गए। पुलिस ने मारगला पहाड़ी जाने वाला रास्ता बंद किया तो कई घंटों तक शहरी गाड़ियों में ही फंसे रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर्स को टेलीफोन करके ईद की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को भी फोन करके नेक तमन्नाओं का इजहार और मुल्क की तरक्की और अवाम की फलाह के लिए मिलकर काम करने का आज़म जाहिर किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से फोन पर गुफ्तगू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सिंध की तरक्की से ही पाकिस्तान की तरक्की जुड़ी है। सिंध के अवाम की फलाह बहबूद हुकूमती तरजीहात है। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आज़म से गुफ्तगू में कहा कि सूबे के अवाम विफाक के साथ मिलकर तरक्की और खुशहाली के लिए पुरअज़्म है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान और गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान से टेलीफोन पर गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने उन्हें ईद की मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की तबीयत अचानक खराब हो गई। कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सदर जरदारी की नवाब शाह में ईद की नमाज पढ़ने के बाद तबीयत बिगड़ गई। गुज़श्ता रोज उन्होंने किसी से मुलाकात नहीं की। रात गए तक उनकी तबीयत में बेहतरी नहीं आई, जिसके बाद खुसूसी तैयारे पर उन्हें कराची मुंतकिल कर दिया गया। पीपल्स पार्टी के जराये का कहना है सदर आसिफ अली जरदारी को रात के क्लिफ्टन में निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनके मुतादिद टेस्ट किए गए। डॉक्टर्स का कहना है बुखार और इन्फेक्शन के टेस्ट किए गए हैं। सदर जरदारी को बुखार महसूस हो रहा था। सदर ममलिकत का इलाज उनके मौलिस डॉक्टर आसिम हुसैन की जेर निगरानी में जारी है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का राबता। वज़ीर आज़म ने सदर ममलिकत की खैरियत दरियाफ्त की और हो जल्द सेहतयाबी की दुआ की। वज़ीर आज़म ने कहा, पूरी कौम की दुआएं सदर ममलिकत के साथ हैं।
वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पाकिस्तान दहशत गर्दी का शिकार है। कुछ लोग इस फितने से सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानी और कौम के इत्तेहाद से वो नाकाम होंगे। मुल्क का दिफा मजबूत होगा। सियालकोट में सिख बरादरी की जानिब से दी गई दावत ईद मिलन में बोले, सिखों के कुछ मुकद्दस मकामात से कब्जा खत्म करा दिया, अभी कुछ काम बाकी है। ईद के दिनों में सियासी गुफ्तगू करके तलखी नहीं बढ़ाना चाहता, सिर्फ खाना खाने आया हूँ। मीडिया वाले सियासी गुफ्तगू पर मजबूर न करें। दहशतगर्दी के शिकार हैं, ये भी एक फितना है। बाज़ फितने मोहब्बत से ख़त्म करना मुश्किल होता है और मेरी दुआ है कि पाकिस्तान में अमन कायम हो और जो इस खलफशार से, इस फितने से, खून रेजी से सियासी फ़ायदा उठाने की जो कोशिश कर रहे हैं, इस कौम का इत्तेहाद और हमारे शुहदा की कुर्बानियाँ पाकिस्तान की मजबूती में, दिफा में, इत्तेहाद में इजाफा करें। चंद महीनों के अंदर बहुत से ऐसे मकामात जिनका तकद्दुस था सिख मज़हब में फाद पर लोगों ने कब्जे कर लिए हुए थे, कब्जे खाली कराए हैं। अभी भी चंद और भी जगह हैं खाली होने बाकी हैं। हम सब मिलके जो कब्जा ग्रुप था सियालकोट में, उनसे ये सारा कुछ वागुजार करवाएंगे। गलबात यार को करनी कर लीए, नहीं रोटी खाइए, अभी गल करनी है यार, मैं तो रोटी खाना है। ईद के दिहाड़े है ने तुसी मेरे को हर वेले फसाद करवाते है, सियासी गुफ्तगू नहीं करनी है यार, ऐसे रोटी खाइए जान दो खुदा दा वास्ते ना करवाएंगे। और अभी आपको बताएं कि बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन। बानी से मुलाकात के लिए नामजद कोऑर्डिनेटर सलमान अकरम राजा और शुएब शाहीन को मुलाकात की इजाजत न मिली। बानी पीटीआई से आजम स्वाति, मुबशर मकसूद, नादिया खटक की मुलाकात हुई। पीटीआई रहनुमा आजम स्वाति कहते हैं बानी पीटीआई से दीगर 2 लोगों के हमरा मुलाकात हुई। बानी को बताया सलमान अकरम राजा आपका सौदा नहीं करेगा। मानसहरा की करप्शन का मामला उठाया। बानी ने हिदायत की जुनैद अकबर की गई तैनातियों को फौरी वापस किया जाए। बानी ने कहा है कमेटी ने फैसला किया है तो स्पीकर कैबिनेट असेंबली को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। पंजाब के मामलात पर भी बानी को ब्रीफ किया। ईद के दूसरे दिन मुल्क भर में यौम ससुराल जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। मर्द हज़रात सुबह से छोटे और बड़े काफिलों की सूरत में मंजिल मकसूद पहुंचे। दामादों के लिए पसंद के खाने बने गए तो ईदियां भी खूब वसूल करवाई गई। सास, ससुर, साली और बेगम का भाई, शौहरों ने आज ससुराल में हाजिरी लगाई। पहले दिन भाभियों ने किचन संभाला था, दूसरे दिन नंदों की बारी आ गई। दामाद बिटिया को लेकर ईद मिलने आए थे तो ससुराल वालों ने खाने भी पसंद के बनवाए। कढ़ाई रोटी बना रही है और बिरयानी की तैयारी है, इंशाल्लाह डिनर की तैयारी हो रही है। उनको नरगिस घर की बड़ी बेटी नहीं है। भाभियाँ सब आपस में, ये कोई रिश्ता मतलब है लेकिन आपस में बहनों की तरह रहते हैं हम लोग। बेटे भी बहुओं के साथ पहुँचे। घरों में सारा दिन रौनक लगी रही। कढ़ाई बिरयानी की खुशबू से घर महकने लगा तो बुजुर्ग खातीन ने पानदान निकाल कर रिवायत पूरी की। ये मेहमानों के लिए, मेहमानों के लिए, बेटियों के लिए, आप लोगों के लिए, सबके लिए। ईदियाँ बट गयी, तोहफे दे दिए तो दस्तरखान भी सज गए। सब ने मिलकर खाना खाया, मीठा उड़ाया और ईद का दूसरा दिन ससुराल में भरपूर मनाया। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अमरीकी महकमा खारजा का पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्द हमलों पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान महकमा खारजा की AIY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा इंसदाद दहशतगर्दी जंग में अमरीका और पाकिस्तान के मुश्तरका मफादात हैं। बात करेंगे ब्यूरो चीफ वाशिंगटन DC जहांजेब अली हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए जहांजेब। जी देखिए, 2 रोज कबल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में टैमी ब्रूस जो कि तर्जुमान है अमरीकी महकमा खारजा की, उनसे सवाल किया था जो पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी की लहर है, तो उस पर उन्होंने कहा था कि वो मुझे इसका जवाब भिजवाएंगी। तो आज उन्होंने मुझे उस सवाल का जवाब तफसील से भेजा है उनके ऑफिस में और उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमेरिका और पाकिस्तान के मुश्तरका मफादात हैं। दाइश के दहशतगर्द शरीफुल्लाह की हालिया गिरफ्तारी पाक अमेरिका मुश्तरका मफादात की अक्कासी करती है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने यह भी कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान ताउन इंतहाई अहमियत का हामिल है और पाकिस्तानी अवाम तशद्दुद और खौफ से आज़ाद जिंदगी गुजारने के मुस्तहिक हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका और पाकिस्तानी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की कोशिशों में पाकिस्तान के साथ साबित कदमी के साथ रहेंगे और पाकिस्तान के साथ मिलकर दहशतगर्दों को उनकी घिनौनी तशद्दुद की कार्रवाइयों के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। टैमी ब्रूस के ऑफिस ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर एक महफूज खित्ते को फरोग देंगे। ठीक, शुक्रिया जहांजेब अली।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का निजी अस्पताल में इलाज जारी है और सदर आसिफ जरदारी को इन्फेक्शन की वजह से बुखार है। इसी पर मजीद जानेंगे। संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद है। संजय, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, डॉक्टर उनकी सेहत का मुआयना कर रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि सदर आसिफ अली जरदारी को इन्फेक्शन की वजह से बुखार हुआ है और जिसके बाद उनके हाथ और पैरों की उंगलियां जो है सुन्न होने की भी शिकायत सामने आई है, जिसके बाद नेरो माहरीन को भी बुलाया गया है। नेरो माहरीन सदर आसिफ अली जरदारी का जो है वो मुआयना कर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी की हालत जो है वो खतरे से बाहर है, कोई खतरे की बात नहीं। मामूली से उन्हें बुखार था, जिसके बाद रात से उन्हें अस्पताल दाखिल किया गया, जिसके बाद इन्फेक्शन और हाथों पैरों में उंगलियां सुनने की तशवीशनाक बात है, जिसका मुआयना किया जा रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी ने अस्पताल में अपनी फैमिली के मेंबरान से भी बातचीत की है और उन्हें भी अपनी सेहत के मुताबिक बताया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पन बिजली के खालिस मुनाफे की मद में केपी के बकाया जात की अदायगियों के लिए वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। लिखा, आर्टिकल 161(2) में पन बिजली के खालिस मुनाफे का मामला वाज़ेह है। आइन के मुताबिक पन बिजली घरों से हासिल मुनाफा मुतालिका सूबों को मिलना है। अदायगियां न होने की वजह से केपी के 75 अरब रुपए के वाजिबात जमा हो गए। केपी हुकूमत को दरपेश माली बहरान के पेश नज़र मसले की फौरी हल की जरूरत है। आउट ऑफ द बॉक्स कमेटी का इजलास जल्द बुलाने के लिए प्लानिंग कमीशन को अहकामात दिए जाएं ताकि मुश्तरका मफादात काउंसिल के फैसलों के मुताबिक दरीना मसले का मुनसिफाना हल निकाला जा सके। उम्मीद है वज़ीर आज़म केपी अवाम को आईनी कानूनी हुकूक दिलाने में किरदार अदा करेंगे। गवर्नर कामरान टिसोरी ने मलीर हॉल्ट कराची हादसे के मुतासरीन को 80-80 गज के 2 प्लॉट दे दिए। कहा, यह कीमती जानों का मदावा तो नहीं, लेकिन यकीन दिलाता हूँ वाक़े पर चुप नहीं बैठूंगा। जल्द ट्रैफिक हादसात पर APC बुलाऊंगा। राफे हुसैन की रिपोर्ट। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने डंपर हादसात पर ईद सादगी से मनाई। ईद के दूसरे दिन मलीर हॉल डंपर हादसा मुतासरीन के घर पहुंचे अहले खाना को अपने मुकम्मल ताउन और इंसाफ की फरहमी तक आवाज बुलंद करने की यकीन दहानी कराई। बोले, शहर लावारिस नहीं, ऐसा ना हो कि ऐसे वाकयात पर सब्र का पैमाना लबरेज हो और कोई बड़ा फैसला कर लें। 18वीं तरमीम के बाद ये एग्जीक्यूटिव इख्तियार गवर्नर का नहीं है कि वो फैसला करने की पोजीशन में हो। ज़ैनब बेटी के वाकये को मैं नहीं भूलने दूंगा। गवर्नर टिसोरी ने कहा कि जल्द ट्रैफिक हादसात पर APC बुलाएंगे। मैं शहबाज शरीफ साहब को भी खत लिखूंगा। अब तक जितने भी लोग डंपर माफिया टैंकर के नीचे कुचले जा चुके हैं, उन सभी के घरों पर ये मेरे हमरा जाएंगे और 80-80 गज के प्लॉट हम उन तमाम फैमिलीज को देंगे। गवर्नर सिंह ने मुतासरीन को 80 गज के 2 प्लॉट की फाइल्स भी दी। कैमरामैन मोहम्मद इमाद के साथ राफे हुसैन, ARY न्यूज, कराची। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सरहदी शहर चमन में ईद के दूसरे रोज दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए रिवायती डिश शोरबे का एहतमाम किया गया। मट्टी के बर्तनों में दुम्बे के गोश्त से बनी इस डिश में नान डिबोकर खाया जाता है। अख्तर गुलफाम मजीद बता रहे हैं। मुख्तलिफ अक़वाम में सकाफती और इलाकाई की बुनियाद पर अपने खास और रिवायती खाने होते हैं। शोरबा भी पश्तून कबाइल की चंद मकबूल तरीन खानों में से एक है। इस वक्त मैं अचिगज़ई हाउस में मौजूद हूँ, जहाँ अचिगज़ई साहब की जानिब से अपने यार दोस्त अजीज अकारिब के लिए दावत का तोहाम किया गया है। इस वक्त इस दावत में शरीक चंद लोगों से जो है वो बातचीत करते हैं। अचिगज़ई साहब, क्या बताना चाहेंगे इस दावत के हवाले से? हमारा खास रिवाज है ईद के दिन यहाँ पे हम जो है दुम्बे से, ये पठानों का जो है खास रिवाज है शोरबा या नमकीन रोश। अचिगज़ई साहब ने हमें ईद के दिन डिनर पे शोरबा खिलाया है, ये हमारे लिए भी एजाज की बात है और इलाके में कल्चर के फरोग के लिए शोरबा का होना लाजमी है। शोरबा हमारे पश्तूनों का एक रिवायती डिश है। ये छोटे बच्चों से लेकर बड़े मामार अफराद तक इंतहाई ज़ौदाज़म और सेहतबख्श समझा जाता है। जी बिल्कुल, यहाँ मौजूद अचिगज़ई हाउस में जो यार दोस्त है, इनका ये कहना था कि शोरबा मखसूस और लजीज पश्तून रिवायती डिश है। इस शोरबे के साथ जो खंडारी सलाद है वो भी पेश किया जाता है, जबकि खास तौर पर इस के साथ जो लस्सी है, जिसे यहाँ मकामी जबान में जो है वो शलुम्बे कहा जाता है, उसको भी मेहमानों के सामने पेश किया जाता है। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।